Welcome you all. Once again, we are taking the another topic of class 12 biology, principle of inheritance and variation. Topic is sickle cell anemia. When we talk about the sickle cell anemia, then we just get the information. This is an autosomal ring recessive trait that can be transmitted from parent to offspring. Autosome लिंक रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है. It can transmit from parent to offspring when both the parents are carrier for the gene that is called heterozygous. The disease is controlled by a single pair of alleles, that is HBA and HBS. Out of the three possible genotype, only homozygous individual from HBS and HBS show the disease phenotype. It is characterized by the sickle shape RBC. क्योंकि RBC का शेप कैसा होता है, सिकल की तरह हो जाता है. The defect gene is caused by the substitution of glutamic acid by valine, means beta chain of hemoglobin. Means कहाँ पर चेंज होता है, valine at the 6th position of beta globin chain of hemoglobin molecule. Means ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन है, उसके कहाँ पर बीटा चेन ऑफ 6th पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन, वहाँ पर क्या कौन सा सीक्वेंस होता है, दैट वन GAG, और उसकी जगह पर क्या वो क्या सिंथेसाइज करता है, ग्लूटामिक एसिड. बट जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें क्या होता है, इन प्लेस ऑफ द ए की जगह पर, एक न्यूक्लियोटाइड की जगह पर देयर द चेंज इन यू. मीन्स the substitution of amino acid in the globin protein result due to the single base substitution at the 6th codon of beta globin gene from GAG to GUG. मीन GA की जगह पर किसका सब्सटीट्यूट देता है, U का, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या सिंथेसाइज कर देता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर ये क्या सिंथेसाइज करता है, वेलाइन को सिंथेसाइज करना शुरू कर देते हैं. मीन्स द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज polymerization under low oxygen tension, causing the change in the shape of RBC from biconcave disc to elongated sickle like structure. ये biconcave disc की जगह इसको चेंज कर देता है, like structure में चेंज होता है, ठीक है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के 6th पोजिशन में GAG था, वो GAG ग्लूटामिक एसिड सिंथेसाइज करता था, बट वहाँ पर म्यूटेशन हुआ, चेंज होने की सब्स्टिट्यूट हुआ, वो एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने, ए की जगह पर क्या चेंज हो गया, यू चेंज हो गया, और उसने क्या सिंथेसाइज कर दिया, कोई नया एमिनो एसिड सिंथेसाइज कर दिया, जिससे RBC का शेप चेंज हो गया, ठीक है. दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. ये किसका भी एग्जाम्पल है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल. Now we take a sample question of sickle cell anemia. What the question? Write the genotype of both the parents who produce a sickle cell anemic offspring. So how can we sort out this problem? We know that sickle cell anemia is a autosomal recessive disease. It means that when we denote it a autosome of normal, these are the two form of genes which are the responsible of the RBC shape, and that is the normal. So in condition the offspring is normal. But when we take that problem in a sickle cell, in that case these are the two alleles of the gene which are responsible of RBC shape. We know that in the sickle cell anemia RBC shape get changed. RBC का शेप कैसे हो जाता है, सिकल की तरह हो जाता है, सिकल की तरह हो जाता है. That's why it's called sickle cell anemia. So in that case the offspring, the individual is also normal, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है. बट द इंडिविजुअल इज नॉर्मल बट इज बिहेव जस्ट लाइक द कैरियर. किसकी तरह बिहेव करेगा, कैरियर.
इट कैरी द डिजीज, ये क्या कैरी करने का काम करेगा, डिजीज को कैरी करने का काम करेगा। नाउ इफ द जेनेटिक कंपोजिशन इज सच वन, if the genotype of the parents या offspring या any individual is this one, in that case the individual get affected। यहां पर क्या होगा, इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा किससे, सिकल सेल एनीमिया, अफेक्टेड इन सिकल सेल एनीमिया। क्यों, क्योंकि जब ये किस कंडीशन में होगा, होमोजाइगस कंडीशन में, तभी रिसेसिव डिजीज क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, अदरवाइज वो एक्सप्रेस नहीं करेगी। नाउ वी लुक द क्वेश्चन, क्वेश्चन टेल दैट द पेरेंट्स, पेरेंट कैसे हैं, बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल, सपोज वन इज मेल अनदर इज फीमेल, both the parents and both are normal. We write, before proceeding the question, we are writing the simply such type of combination, such type of allele. But the offspring, are sickle cell anemic. Offspring कैसा है, sickle cell anemic. And when does the sickle cell get appear in any generation, कब कोई इंडिविजुअल सिकल सेल से अफेक्टेड होगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन होगा। इट मीन दैट डेफिनेटली द पेरेंट्स आर क्या होंगे, कैरियर की तरह होंगे, तभी कैरियर जो पेरेंट होगा वो अपीयर कैसा होगा, नॉर्मल, इट इज नॉर्मल, द फीमेल इज नॉर्मल, मेल इज ऑल्सो नॉर्मल, बट इट इज ए कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिक। ये दोनों कैसे होंगे, नॉर्मल, लेकिन क्या कैसे, क्या किसके कैरियर होंगे, कैरियर किसके होंगे, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिक जीन। सो वन जीन कम फ्रॉम दिस पेरेंट एंड अनदर जीन कम फ्रॉम दिस पेरेंट। सो जो इंडिविजुअल होगा ये क्या हो जाएगा, अफेक्टेड इन सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, whenever the question is asking to us, क्वेश्चन क्या हमसे कह था, once again we are looking the question, write the genotype of both the parent। तो दोनों पेरेंट का जीनोटाइप क्या हो गया, the both the parent having the genotype is genotype of parents HBA, HBS, HBA, HBS, ठीक है। एंड ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, HBS, HBS। मीन द ऑफस्प्रिंग हु सफर, कोई भी इंडिविजुअल अगर सफर होगा सिकल सेल एनीमिया से, उसका जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव डिजीज, और जो पेरेंट नॉर्मल होंगे उनका क्या हो सकता है, the normal parent having the genotype is that one and this one, ये दोनों तरह के कॉम्बिनेशन पेरेंट का हो सकता है। बट जब पेरेंट्स अगर ये वाली कंडीशन होगी तो उस केस में क्या होगा, चाइल्ड अफेक्टेड नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। अगर मान लिया एक पेरेंट का कॉम्बिनेशन ये है और दूसरे का ये है, तो भी जो ऑफस्प्रिंग का कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, HBA, HBS आ जाएगा। सो इन दैट केस the offspring are not affected। offspring कब affected होगा, when the both the parents are carrier, because the sickle cell anemia is a autosomal recessive disorder। in that case both the male and female are equally get affected। ठीक है, ये मेल और फीमेल में दोनों में इक्वली नंबर में क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। सो होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़े थे दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। वहां पर क्या था, वहां पर वो किस क्रॉस पैटर्न को फॉलो कर रहा था, फीमेल के कंपैरिजन में मेल ज्यादा अफेक्टेड थे, बट
सिकल सेल एनीमिया क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, जहां पर क्या होगा कि दोनों मेल एंड फीमेल इक्वली क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोसोम से इनहेरिटेट होने वाली डिजीज है और ऑटोसोम दोनों में सेम तरह के होते हैं। थैंक यू।